وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آئیے دیکھیے میں آپ کو ایک دیوبند کے مکار کی گفتگو سنواتا ہوں۔ یہ ہماری جماعت کے جو سیدھے سادے بھولے بھالے سنی مسلمان ہوتے ہیں یا جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، جو ابھی بیچارے نہ تو کوئی عالم ہے اور نہ جو ہے ان کا یہ فن ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہابی دیوبندی کا رد کریں، تو ایسے ایسے لوگوں کو نا یہ اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ خیر، مولانا مشرف صاحب جو کہ بریلی شریف کے رہنے والے ہیں، ان کے ایک شاگرد کو بہکا رہا تھا ایک دیو کا بندر، تو ان کے شاگرد نے ان کو کال کیا اور کہا کہ حضرت ایسے ایسے بات ہے۔ انہوں نے مجھے لائن پر لیا، وہ کہیں پہ تھے، انہوں نے کہا نور حسن بھائی آپ بات کر لیجئے۔ میں نے بات کی تو کال کٹ کر کے فرار ہو گیا۔ سنیے آپ پوری گفتگو کو، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور ایک دوسرے کو ضرور شیئر کر دیا کریں۔ اس کام میں آپ میری ضرور سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے ہر مومن بھائی تک پہنچ جائے، تاکہ ہمارا ایمان و عقیدہ جو ہے صحیح سلامت رہے۔ ان بدعقیدوں کے ذریعے ہمارا ایمان و عقیدہ جو ہے برباد نہ ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہاں جی، حافظ عمران بول رہے ہیں؟ ہاں جی رات سہیل نے نمبر دیا تھا یہ۔ جی، کیا معاملہ تھا؟ معاملہ تو کچھ نہیں تھا حضرت۔ وہ کچھ عقائد کو لے کر بتا رہا تھا کہ کچھ، تو میں آپ سے ہی سننا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ نہیں، آپ بتائیے کس کے اوپر بات کی تھی، جبھی تو میں بتلاؤں حضرت۔ نہیں، دیوبندی کے چار اکابرین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں آپ؟ کن کے بارے میں جی؟ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں تعلق رکھتا ہوں دیوبند جماعت سے جی۔ اچھا اچھا، یہ بتائیے نماز کتنے ٹائم پہ ہے ابھی آپ کے یہاں؟ میرے یہاں پہ نماز 1:30 بجے۔ فارغ کتنے بجے ہو جائیں گے؟ فارغ تو جی میں 3 بجے جا کر ہوں گا، 2 بجے پھر میں بچے پڑھانے چلا جاتا ہوں حضرت۔ اچھا اچھا، جی جی، تو آپ دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں نا، تو اس کو کیا سمجھا رہے تھے آپ؟ میں نے ان کو یہ سمجھایا تھا مگر بھائی آپ کہیں بھی رہیں ٹھیک کہ نماز کو قائم رکھنا، ٹھیک ٹھیک ہے، مگر ادھر ادھر کی باتوں میں مت چلو، مگر اگر چلنا ہے تو اپنی اکابروں کی، ہمارے اکابر جو ہیں وہ جس طریقے پر لے کر چل رہے تو اس طریقے پر چلو۔ کون کون اکابر؟ سبھی اکابر ہیں حضرت، جیسے جو بھی ہیں، چاہے وہ بریلوی سے ہوں تعلق رکھتے ہوں یا دیوبند سے تعلق رکھتے ہوں۔ جی نہیں، تو ہماری نظریے سے جو دیوبند کے 4 اکابرین، اسماعیل دیدوی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، یہ سب کافر ہیں اپنے عبارات کی روشنی میں۔ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ہمارا تو نظریہ نہیں ہے یہ۔ تو ان کے پیچھے ہماری نماز بھی نہیں ہے۔ حضرت ایک بات بتائیے، ابھی آپ نے یہ بہت بڑی بات بولی کہ آپ کی نظروں میں یہ کافر ہے۔ جی جی، اپنے عقائد کی روشنی میں، جی اپنی عبارات کی روشنی میں یہ لوگ کافر ہیں۔ آپ کی عبارت کی روشنی میں جو بھی ہے وہ اسے ہم نہیں وہ کرتے، مگر آپ نے یہ بات کی کہ ہماری نظروں میں، آپ قرآن کون سا پڑھتے ہیں؟ بے شک، جو قرآن ہے۔ عربی کون سا قرآن پڑھتے تھے؟
वे कुरान कौन सा पढ़ते थे? कौन? मौलाना कासिम नानोतवी। अच्छा, कुरान पढ़ने से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक चीज बताइए मुझे, पहले एक चीज का बताइए, ताल्लुक उसका बताइए। आपने बताया ना अभी कि मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना ये हम इनको काफिर समझते हैं। इनका बताइए कि आप कुरान कौन सा पढ़ते हैं, ये बतलाइए मुझे। तो कुरान हम पढ़ते हैं, शैतान भी तो ये चीजें सब एक अकायद का एक तो शैतान तो है ही, आप ये शैतानी वाली बात तो कर ही रहे हैं। अच्छा, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कुरान पढ़ लेना, तो कुरान तो बहुत से आरएसएस वाले भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, तो कुरान पढ़ लेना ईमान है, ये कहाँ से दलील है आपके पास? जी जी, कुरान हर आदमी कुरान जो पढ़ लेता है, कुरान का पढ़ लेना, ये ईमान की दलील है? पढ़ लेना, उस पर अमल कर लेना और कलमा पढ़ लेना कि 5 अरकान है ना ईमान के, हैं? तो 5 में से कौन से उस पर नहीं चल रहे हैं अकाबिर? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं आप क्या काबिर? ये बताइए गुस्ताखी कहीं में है? आप बता दीजिए। किताबों में। कौन सी किताब में? कई किताबें हैं, ये नहीं बताइए, आप दलील दीजिए हजरत, दलील दीजिए। आप हमारे पढ़े हैं, देखो हजरत। सकता है कौन? अच्छा, मैं अभी जरा अजान हो जाए फिर कॉल करूँ। कितने टाइम ये बताइए, आपके पास अभी आधा घंटा है ना? हाँ जी, मैं अभी फौरन कॉल बैक कर रहा हूँ, अजान सुन लूँ जरा। ठीक है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हजरत। वालेकुम सलाम, खैरियत से? जी बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह हजरत। एक है जी हाफिज इमरान देवबंदी। अच्छा अच्छा, मैं लाइन पर ले रहा हूँ। अच्छा मैं अभी जरा कहीं पे था हजरत कहीं मीटिंग में। हटो, इधर उधर हटो, बात करना है अभी। हाँ अभी बात करना है, चलिए आप जी लीजिए लाइन पे। क्या कह रहे हो? खोल के बहुत अपने आप को बोल रहा है मैं देवबंदी हूँ, और वो भी कुरान पढ़ते हैं, हम भी कुरान पढ़ते हैं, आप भी कुरान पढ़ते हैं। ले लो जरा, ले आओ। बस मैं कहीं था मीटिंग में बैठा हुआ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद। हेलो। हाँ जी हजरत। जी 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 हेलो। हाँ, कॉन्फ्रेंस में मैंने इसलिए लिया है अभी हजरत को, नूर हसन भाई हैं, ताकि आपका फोन कट जाए तो कॉल ना कटे। ये हैं इमरान साहब, अच्छा। और अकायद देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा अच्छा, और इनके नजदीक कुरान का पढ़ लेना, नमाज का पढ़ लेना, 5 अरकान अदा कर देना, ये इतना ईमान काफी है। और इनके नजदीक जो है जो इबारतें हैं वो झूठ है, ऐसी किताबों में नहीं है। थोड़ा इनको बताएं। अच्छा अच्छा। और मैं अपना म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं ज्यादा जोर से बात नहीं कर सकता, ऐसी जगह बैठा हूँ, आप बात करिए। ठीक है? तो क्या ये बात सही है भाईजान के कलमा पढ़ लेना, नमाज पढ़ लेना, ज़कात अदा कर देना, ये अगर कोई करता है तो वो मुसलमान है और मुसलमान ही रहेगा? हजरत ये बात मेरी नहीं हुई अभी। अच्छा, पहले तो सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। मैंने कहा कि 5 सबसे बड़ी चीज जो है वो 5 अरकानों में है। हजरत ने कहा कि मेरी नजरों में जो हमारे अकाबिर हैं, अभी सुनो, मैंने कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया इनसे कि भाई मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। एक साथी आते हैं यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए जी, यहाँ पे मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, अच्छा, यहाँ पे एक साथी आते हैं, इन्हीं के शागिर्द हैं हजरत के। अच्छा, ठीक है हजरत जी। तो वे आए मेरे पास में। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा, कहने लगे कि भाई ऐसा है वैसा है। मगर देखो भाई, अकाबिर जो है वो उनके एतबार से वे जाने, हम अपने एतबार से, मगर उनके उसमें नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जैसे हमारे अकाबिर हमें समझा रहे हैं, कुछ अकाबिरों की तहकीकात पर चलो। ठीक है। दूसरी बात, फिर उन्होंने कहा, कहने लगे कि देवबंदी के पीछे नमाज नहीं होती।
मगर मैं इस बात को नहीं कह रहा कि आप देवबंद के पीछे नमाज पढ़ें। मैंने ये कहा उनसे कि भाई जहां भी तुम्हें वक्त मिले, कहीं भी मिले, मगर नमाज नहीं छोड़नी है। जी ठीक है, सही। जो भी बात हुई हमारी इसी के ऊपर बात हुई, ना तो मेरी बरेलवी के ऊपर बात हुई, ना मेरी देवबंदी के ऊपर बात हुई। मैंने उनसे कहा कि कहीं भी वक्त मिले अपनी नमाज को अदा करें, क्योंकि आज हमारे जो मुसलमान भाई हैं वे नमाजों से दूर होते जा रहे हैं और हमारे ऊपर मुसीबतें टूटती जा रही हैं। कि अपने रब से मांगो, अल्लाह से मांगो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके से मांगो, तो यहाँ से आपको मिलेगा कि अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। जी माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके जी, और बड़ा अच्छा अंदाज है आपका बात करने का। तो ठीक है जी हजरत। फिर अभी इन्होंने कहा कि मौलाना कासमी ननौतवी, अच्छा, और अच्छा, मौलाना अशरफ अली थानवी, अच्छा, और जो 2-4 अकाबिरों का नाम लिया, अच्छा अच्छा, इन्होंने सीधा छूट तो कहा, कहने लगे कि वे मेरी नजरों में काफिर हैं। जी, यानी मैं का मतलब अल्लाह अच्छा, को मैं पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा, जो पहली सबसे बड़ी बात तो ये है जी, जी, क्योंकि जिसके अंदर मैं आ गया उसके अंदर तकब्बुर भर गया, और अच्छा, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। जी जी जी, ठीक है जरा। जी, तो इन्होंने कहा कि वे काफिर हैं। मैंने कहा मगर आप कुरान कौन सा पढ़ते हैं? जी, ठीक है, हाँ, आप नमाज कौन सी पढ़ते हैं? जी, जो नमाज आप पढ़ते हैं वही नमाज वे भी पढ़ते हैं। अच्छा, जो नमाज के अंदर कुरान पढ़ते हैं वही कुरान वे भी पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, या कुरान के अंदर अगर तब्दीली हो गई हो तो मेरी नजरों में तो है नहीं हजरत। जी जी जी, ठीक है जी, अब जहां तक का मेरा इल्म कहता है, जी, मेरा इल्म कहता है हजरत हाँ, कि हमें जो हमारे अकाबिर हैं बड़े, जी, चाहे वे बरेलवी से ताल्लुक रखते हों या देवबंदी से ताल्लुक रखते हों। अच्छा अच्छा, उनका तो आपके अकाबिर बरेली और देवबंदी दोनों से ताल्लुक रखते हैं? हाँ जी बिल्कुल रखते हैं, हम तो रखते हैं जी। अरे किसी को नहीं वो करते। चलिए, ठीक है हजरत। हमारे पास में अभी अच्छा, मैं एक चीज और बतला देता हूँ आपको। जी, मैं यहाँ पे एक जलसा हुआ था 12 वफात के दिन, 12 वफात या 12 रबीउल अव्वल? 12 रबीउल अव्वल को। अच्छा अच्छा, क्योंकि यहाँ तो सभी 12 वफात बोलते हैं। थानवी जी ने मना किया ना कि पता नहीं अवाम क्यों इसको 12 वफात बोलती है। ठीक है जी, तो 12 रबीउल अव्वल को यहाँ मगर यार ऐसे बात नहीं होगी ना, आप ही अपनी बात कहे चले जा रहे हैं और हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। 6:15 मिनट हो चुके हैं। 1 मिनट मेरी सुन लो जी, 1 मिनट ये सुन लो, फिर आपकी मैं सुनूंगा सारी चीज जी, इसको बात करने के बाद। ठीक है, तो मैं एक जलसे में गया जबकि मेरे पास में दावतनामा आया था। जी, ठीक है, मैं उसमें पहुंच गया, कोई हाँ, बात नहीं, मैं स्टेज पर जाकर बैठ गया। जी, एक ने बयान किया कि अगर देवबंदी से किसी ने मुसाफा मिला लिया तो निकाह टूट जाएगा। अच्छा, ठीक है हजरत। सबूत कोई दलील? मैं भी बैठा जी, कोई दलील कोई सबूत? मेरे पास में फिलहाल तो सबूत है नहीं। तो बस सबूत नहीं है तो रहने दो, आप इस बात को मत कहो, कोई और बात कहो। चले आप इन चीजों को छोड़िए, आप बता दीजिए अब आप क्या कहना चाहते हैं इन चीजों के ऊपर। देखिए, मैं आपकी कुछ बातों से बड़ा खुश हुआ और कुछ बातों से मुझे कोई इत्तेफाक नहीं, इख्तलाफ है। जी बताइए हजरत। जैसे कि आपने कहा कि भाई जो नमाज आप पढ़ते हो वही नमाज उलमाए देवबंद पढ़ते हैं, जो कुरान आप पढ़ते हो वही कुरान उलमाए देवबंद पढ़ते हैं। मुझे इस बात पर इख्तलाफ है। जो कलमा आप पढ़ते हो वही उलमाए देवबंद पढ़ते हैं, तो मुझे इन पर इख्तलाफ है। इख्तलाफ ये है कि अगर आपने वही कलमा, वही कुरान और वही सारे अरकान समझे होते, माने होते, तो फिर ये इख्तलाफ ही पैदा ना होता। जी, अल्लाह बेहतर जाने कुरान को आपने किस तरह पढ़ा, किस तरह समझा, क्या जाना, क्या माना, है ना? जी जी। कुरान तो अपने नबियों के लिए बहुत खुसूसियात उसमें बता रहा है, जो खास बातें हैं।
मगर उलमाए देवबंद उन खास बातों को तस्लीम नहीं करते। जी, कौन सी बात? अपने बुजुर्गों के लिए तस्लीम कर लेते हैं, मगर जी, वही चीज हम अगर अंबिया औलिया के लिए बोलें तो ये शिर्क, बिदत और न जाने क्या क्या वो हो जाता है। जी, शिर्क और बिदत तो मतलब एकदम आम तौर पर निजी है। जी, हाँ, इजी और निजी एकदम दोनों ही है। जी, मतलब इसका कुछ हवाला? हाँ, इंशाल्लाह हवाला दूंगा, जो कहूंगा उसका पूरा सबूत, पूरी दलील। जी 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 जी, बताइए। बड़ी मजबूती के साथ। और अगर कोई जी जी, उलमाए देवबंद में से बड़ा अगर मेरी बात काट दे तो 10,000 इनाम के। जी हजरत बोलिए। और 10,000 भी छोड़िए, मैं 1 लाख रुपए इनाम के दूंगा अगर मेरी बात कोई गलत साबित कर दे। हजरत ना तो हमें 1 लाख की जरूरत है, ना हमें उनकी जरूरत है। नहीं, मजबूती की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कोई सबूत, कोई सनद? नहीं हजरत, मैंने आपने जो कोई बात नहीं, चलिए माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि बड़े अच्छे से आपने बात की। मैंने आपकी बात को 6, सवा 6, साढ़े 6 मिनट तक सुना, 6-7 मिनट तक। जी 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 हजरत। तो अब मैं अपने तरफ से कुछ आपको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। आप चाहें तो माने, चाहें तो ना माने। जी, तो मुझे जिन बातों पर इख्तिलाफ है वो बता रहा हूँ। जी जी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को गैब का इल्म अता किया है। उसमें हमारे नबी भी हैं जो अल्लाह के महबूब हैं। हमारे आका हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गैब का इल्म अता किया है। जी, ठीक है भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब हासिल है, अल्लाह ताला का अता किया हुआ। जी, ठीक। उलमाए देवबंद का कहना है, उनका नजरिया है कि गैब सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा किसी को गैब नहीं। जी, क्या ये बात सही है? हजरत मैं आपको बतला दूं? जी बताइए। हाँ बताइए। जी हजरत, मैं इतनी गहराई पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ हजरत। अरे भाई साहब, अभी तो मैंने बड़ी तारीफें सुनी थी आपकी। आप माशाल्लाह कह रहे थे कि मैं उलमाए देवबंद से हूँ। माशाल्लाह देखो हजरत, एक हाफिज होता है, एक आलिम होता है, एक कारी होता है, सबका अपना दर्जा रखा जाता है हजरत। क्योंकि मैंने आपसे एकदम यहाँ पे क्यों कह दिया, क्योंकि हजरत मैं इतनी गहराई की तहकीकात इतनी नहीं जानता हूँ अभी, क्योंकि मैं एक हाफिज हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ हजरत। क्योंकि अगर मेरे से कहीं जरा सा भी लफ्ज इधर उधर हो गया ना तो सबसे बड़े गुनहगार तो मैं बन जाऊंगा। नहीं, जबान से कोई लफ्ज गलत नहीं। देखिए, आप अपने तरफ से कुछ मत कहिए, आप अपने उलमा का नजरिया बताइए। आप अपने उलमा का तो नजरिया अकीदा जानते हैं ना? जी जी, तो बस वही बताइए। आपके नजदीक हमारे आका हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म हासिल है या नहीं? हजरत, गैब का इल्म, हाँ, हमारे सारे अकाबिर इस चीज को बतलाते हैं। अच्छा, क्या? कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जी, अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते थे और इल्म पहुंचाया करते थे। अच्छा, आपको फरिश्ते नजर नहीं आते, हमें भी नजर नहीं आते। अच्छा, तो ये इसकी बुनियाद पर, अच्छा, जो हमें मेरा अकीदा कहता है, मैं अपने अकीदे के ऊपर कहता हूँ। अच्छा, अभी तक ठीक है हजरत। जी, क्योंकि मेरा अकीदा कहता है कि जब वे नूरी फरिश्ते हैं तो नूर की तरफ से इल्म हासिल हुआ। नूर से मुराद, नूरी फरिश्ते हैं तो नूर से मुराद यानी जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सबका फरिश्तों का सरदार है। अच्छा, ठीक हजरत, के जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही वही लेके आया करते थे और वही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंचाया करते थे। क्या गलत बोल दिया आपने? गलत बोल दिया, दोबारा से सोच समझ के बोलिए। अल्लाह ताला के पास पहुंचाते थे या नबी पाक के पास पहुंचाते थे? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में अल्लाह तबारक व तआला की बातें पहुंचाया करते थे। ऐसा बोलिए, क्योंकि आपको बोलने में ना भूल हो गई, वो हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आपने जो बोला है। जी 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 जी।
तो मैं इसीलिए हजरत, इसीलिए तो कहता हूँ क्योंकि मैं अब देखिए सुनिए, जैसे कि चलिए आपने जिस तरह कहा, चलिए हम अगर उस तरह भी माने जी, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो गैब अता किया, चाहे वो डायरेक्ट दिया, बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी फरिश्ते के, है ना, बीच में कोई फरिश्ता नहीं, सिर्फ अल्लाह रसूल का मामला है, ठीक है। चलिए मैं कहता हूँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी ले लीजिए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कोई चीज आके बताई, तो अभी इल्म तो हुजूर को ही हुआ ना जी, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अच्छा, हमने तो इसको तो हम मानते हैं हजरत। अरे माशाअल्लाह, मानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, माशाअल्लाह, बहुत दिल खुश हुआ यार आपको जी। आपको जब ये मालूम है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत बड़ी खुशी हुई जी। तो फिर बताइए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की बात का इल्म हुआ कि नहीं हुआ? तो गैब का इल्म तो हो गया, तो उसी के जरिए से तो ये कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते के जरिए से मालूम कराया। मैं कह रहा हूँ किसी भी जरिए से, सुनिए हजरत, वही जरिया है हजरत। देखिए असल में बात क्या है जी, आदमी जब किसी से मोहब्बत करता है तो बेलोस मोहब्बत करता है, और आदमी किसी से दुश्मनी रखता है तब भी जी, दुश्मनी ही रखता है, समझे। आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफें करता है, जिससे नफरत रखता है उसकी बुराइयां करता है जी, है कि नहीं है। और उसका कोई भी अच्छा काम या उसकी कोई भी जो है बात हजम नहीं होती जी, मुखालिफ को, जी, ठीक है जी, मेरी अच्छी बात मेरा मुखालिफ अच्छी नहीं कहेगा, बुरी कहेगा, जी, मेरे अच्छे काम को भी मुखालिफ बुरा बताएगा, क्योंकि उसे कमी निकालना है मेरे काम में, जी, जी, समझे जी। हाँ, तो अब इसमें कीमिया निकालना, मेखे निकालना, इधर उधर की बातें ऐड करना, ये तो बुग़्ज़ की निशानी हो गई, ये बुग़्ज़ की पहचान हो गई, ये अदावत रसूल की पहचान हो गई, ऐसा वैसा यूं तू, ये है कि नहीं है। देखो ये आपने क्या कहा कि अल्लाह का पैगाम, आपने क्या कहा? अल्लाह का पैगाम, जी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने अपना पैगाम हुजूर को पहुंचाया, जी, जी, तो गैब की बात भी पहुंचाई, जी। तो जब गैब की बात अल्लाह ने, एक मिनट, गैब की बात है सारी है जी, ये सारी बातें जब नूरी फरिश्ता, अच्छा नूरी फरिश्ता, हाँ नूरी फरिश्ता जब ऊपर से अल्लाह से लेकर आ रहा है, अल्लाह तबारक ताला से लेकर आ रहा है, नबी के पास में पहुंचा रहे हैं, तो वो तो गैब की बात हुई, गैब की हुई ना जी। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, अच्छा एक और चीज मुझे याद आई जी, ये बताइए कि कुरान में आया है कि 5 चीजों का इल्म कोई नहीं जानता, क्या है वो? इसका मुझे नहीं मालूम हजरत। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, और क्या है आप बता दीजिए हजरत। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि मैं इतनी गहराई में नहीं पहुंचूंगा हजरत, क्योंकि मेरे से गलती हो सकती है हजरत। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा चलिए मैं ये कहता हूँ, ये बताइए, अभी देखो मैं, देखिए आप ज्यादा बोलने लगे, सुनो तो जी, ऐसे बात नहीं होगी, मैं बड़े प्यार से बात करने वाला इंसान हूँ, प्यार से बात होगी, जैसे मैंने आपकी प्यार से बात सुनी और मेरी भी बात सुनो आप प्यार से, तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा होगा, बड़ा लुत्फ आएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि 5 चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं, जैसे कौन क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कहाँ मरेगा, औरत के पेट में क्या है, जी जी, है ना, मालूम है ना सबको, बच्चे को मालूम है जो देवबंदी जमात से ताल्लुक रखता है, सबको मालूम है, आपको भी हमें भी जी मालूम है ना सबको। बताइए। हाँ जी, कोई आयत याद हो ना हो, मगर ये आयत जरूर याद कराते हैं लोग कि देखो भाई अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं, अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं, अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं, समझे। तो बताइए औरत के पेट में लड़की है या लड़का, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता किया कि नहीं?
इसके बारे में हजरत मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी अभी तक, मैं ऐसे नहीं बता सकता इसको, ना मेरे सामने ये लफ्ज आए हैं, ना किसी आलिम के जुबान से सुना हूँ अभी तक। अच्छा, ये चीज मैंने नहीं सुना। अच्छा, चलिए, आपने हुजूर के लिए नहीं सुना है ना? आप जी नहीं, मैंने इस चीज के बारे में, यानी अल्लाह के नबी को इस चीज का इल्म है या नहीं है, इस चीज के बारे में मैंने नहीं सुना। जी जी जी, माशाल्लाह। जब आपने नहीं सुना तो आपके बड़ों ने भी नहीं सुना होगा, जी है ना? देखो, हुजूर के लिए सुना होगा। हुजूर के लिए क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि मैंने भी बड़े बड़े मुफ्तियों से, बड़े बड़े काबिल लोगों से बात की है, तो हर कोई मना करता है कि नहीं भाई नहीं, ये बात गलत है, कुरान के खिलाफ बोल रहे हो आप। अगर मैं किसी से ये कह दूं कि हाँ अल्लाह ताला की अता से मेरे नबी ये बात जानते हैं कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का, तो कहते हैं भाई तुमने कुरान के खिलाफ कह दिया, और वो कुरान की ये आयत पढ़ के बताते हैं, कहते हैं देखो भाई कुरान मना कर रहा है। देखो जो आपका मुज़ाकरा होता होगा हजरत, मैं गुस्ताखी माफी चाहूंगा इस चीज में, जो आपका मुज़ाकरा होता होगा वो अकाबिरों से होता होगा, हमारे से तो नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ है कोई आपका कोई बड़ा आलिम जी, है कोई आपकी नजर में कोई आपका बड़ा आलिम जो बात करे? बहुत है जी जनाब। हजरत एक चीज बतलाइए मुझे। जी जी, इन चीजों को जो आप इन चीजों के ऊपर मुझे इतनी गहराई में लेके जा रहे हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, आप सादा कागज हो, कोरा कागज हो, या फिर अनजान बन रहे हो। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, अब मैं आपको जो है सीधी सीधी बात कहूं, ज्यादा कुछ ना कहकर, जी, उलमाए देवबंद के जो 4 बड़े बड़े अकाबिर है ना जी, दायरे इस्लाम से खारिज हैं। इनके कुफ्र को मैं साबित करूंगा इंशाल्लाह जब मैं बात कह रहा हूँ तो। आप तो कुफ्र वाली बात पर जा लिया, हमने कुफ्र वाली बात की कोई तहकीकात नहीं की हजरत। आप करें या ना करें, आपकी जमात के लोग बार बार ये कहते हैं उल्हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। नबी का नाम हमारी जबान पे रहता है हजरत जी, आपसे ज्यादा नबी का लफ्ज हमारी जबान पे रहता है। बुराई वाली बातों में, बुराई वालों में नहीं, अच्छाई वाली बात नहीं, बुराई वालों में। तुम कहते हो कि नबी को ये नहीं मालूम। सुनो में यार, कमाल कर रहे हैं आप। सुनो देखो, हमने बहुत तेज बोलने लगे आप, इतनी उसमें वो वाली बात नहीं रही, प्यार वाली बात नहीं रही। मैं अभी भी प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, आप प्यार वाली बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने सच कह दिया ना, सच कड़वा होता है। अकाबिर को, एक मिनट, सच कड़वा होता है। अकाबिर को कौन सा मैंने बुरा कहा? आप बुरा कहो ना कहो, हमारे अकाबिर बुरे हैं ही नहीं जो बुरा कहोगे। बुरे को तो बुरा कहा जाता ना। तो आप ही खुद बुरे हैं हजरत, आप खुद बुरे हैं। उलमाए देवबंद के 4 बड़े अकाबिर पक्के काफिर, इनके कुफ्र को जानते हुए जो इन्हें काफिर ना माने वो भी पूरा पक्का काफिर, बुरे हैं। और जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर। और आप खुद बुरे हैं, अकाबिर नहीं, आप खुद बुरे हैं, आप खुद बुरे हैं हजरत। अच्छा, एक और चीज, आपने ये नहीं पढ़ा कि हुजूर को इस बात का इल्म अल्लाह ताला ने अता किया कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की है लड़का है ना? आपको इल्म, फिर वहीं आइए, फिर वहीं आइए, में वही आ रही होंगी हजरत। सुनिए तो, नहीं आ रही है। अच्छा चलिए, तो उलमाए देवबंद की एक किताब है हिकायत औलिया, लिखने वाले का नाम मौलाना अशरफ थानवी। ये लिखते हैं कि कौम के एक राजपूत हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला राजपूत। जब किसी के घर में हमल ठहरता और वो लोग जब उनके यहाँ तावीज लेने जाते, किससे? अब्दुल्ला खान राजपूत से, तो वो बता दिया करते थे जा तुझे लड़की होगी या लड़का, तेरे घर में लड़की होगी या लड़का, ठीक है? तो जिसके लिए जो कह दिया उन्होंने उसको वही हुआ। अगर किसी के लिए लड़की कहा तो लड़की हुई, किसी के लिए कहा लड़का होगा तो लड़का ही हुआ। ये कैसे उनको पता चल गया अब्दुल्ला राजपूत साहब को, बताइए। तो इस चीज के बारे में हमें इल्म नहीं है ना। तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं है यार, तुम कोरा कागज हो, तुमको धोखे में रखा गया है। आपको भी कुछ, और देवबंदियों में 85% से ज्यादा लोग धोखे में। सबसे बड़े फरोटी इंसान है आप तो।
आपके अच्छी बात नहीं लगी मुझे। अरे तुम्हें अच्छी बात लगेगी क्या? क्योंकि जब आपके अंदर कोई तरबियत ही नहीं है, क्योंकि बस भाई और कुछ नहीं है हजरत। आप बड़ी बातें हाँक रहे थे कि ऐसा वैसा ये वो, बड़ा जो है अफलातून बक रहे थे। मैं मीटिंग छोड़ के जा रहा हूँ, मैं मीटिंग छोड़ के अलग में आया हूँ और बड़े प्यार मोहब्बत से आपसे बात कर रहा हूँ, समझे? आप ऊट पटांग वाली बात कर रहे हैं। नहीं जनाब, ऊट पटांग वाली मेरी एक बात बताइए आप। पटांग वाली बात कर रहे हैं। नहीं, ना आपकी बात चल जाए। हैं? आपकी बात कोई ऐसी नहीं है जो भाई आपने ये नहीं सुना कभी, ना पढ़ा, ना कोई हदीस पढ़ी आपने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मना कर दिया था कि मैं इस चीज के अंदर नहीं जाऊंगा कि आपको। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबूत दूंगा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि फला तुझे बेटा हुआ है, बेटा होगा। अल्लाह ताला, तू जो अपनी बीबी से मिला है, अल्लाह ताला ने तुझे बेटा अता किया है। मैं सनद पेश करूंगा, दलील पेश करूंगा, समझे जनाब? मैं सनद पेश करूंगा, दलील दूंगा, समझे? मगर तुम्हें रसूल पाक की कोई तारीफ नहीं मालूम। रसूल पाक का कोई भी, सुनिए हमारी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हें कोई भी कमाल जो है ना हजम नहीं होता। अब्दुल्ला खान राजपूत का ये कमाल हजम हो जाएगा क्योंकि थानवी ने लिखा है। आपका जो ये मौलाना अशरफ थानवी है, इसे कैसे पता चला? छोड़ क्या कॉल कट कर दी उसने, भाग गया? ये साला जाहिल है एक नंबर का हजरत, ऐसे कहाँ चूजों को लाइन पे ले लिया आपने? अरे मैंने कहा देखो शायद कोई होगा, ये मैंने आपकी बात सुनो, मैं यहाँ होटल में ठहरा हुआ हूँ। अच्छा। और मेरी आवाज जोर से निकलने लगती तो लोग देखते, हाँ। लोग तो मैंने कहा आपकी बात कर रहा हूँ जी। ये तो चूजा निकला कि कहीं भी किसी भी जगह पे बात करने को राजी ना हुआ। ये तो मेरा एक शागिर्द है ना दिल्ली में, अच्छा। नाम का हाफिज सोहेल। अच्छा अच्छा हाफिज, उसने 8 घंटे 13 मिनट में पूरा कुरान सुनाया था एक ही बार में। अरे माशाल्लाह। उसको बहका रहा है कि नहीं तुम नमाज़ें सबके पीछे पढ़ो, ये है वो, ये बहका रहा है। इसकी तो मैं खाल उधड़ के बुन दूंगा मैं। इसका नंबर मुझे दो, फिर देखो मैं इसका क्या करता हूँ। ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। इमरान नाम है, हाफिज है ये, और ये अनजान बन रहा है। आई नहीं, ये बहरूपिया है, बहरूपिया हजरत। तो उसकी ये बहरूपी रात में मेरे पास में। अच्छा, ऐसा कह रहा है कि मेरा नंबर दे देना हजरत उनको, अपने शागिर्द साहब को। मैंने भेज दिया है, बस कोई भेज दे रहा हूँ इसका, इमरान का नंबर। हाँ, और ये रिकॉर्डिंग आप चला देना। ठीक है इंशाल्लाह। और ये बहरूपी हैं और बड़ी हिकमत से जो है लोगों का ईमान लूटते हैं। और कह रहा है मुझे इतना इल्म नहीं है हजरत, क्या कहूँ, ये मक्कार है, मक्कार हजरत जी। अभी ठीक है, नमाज पढ़ लें, 2 बजे के बाद फिर से लैंड पे लेता हूँ इसे। हाँ हाँ हाँ, इसको बोलो कि यार चले क्यों गए, बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे थे आप पहले तो। हाँ, सीधे सीधे पॉइंट पे ये जो कह रहा है ना, दिखाओ काफिरीन की गुस्ताखियाँ कहाँ हैं, वो सब इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये मतलब किसी एक मौजू पर भी इसने जैसे बात करने का अंदाज होगा ना, नहीं कि इसने टालने की बात करी। जी जी, इस ऑडियो में 1-2 हवाले डालना आप बोल के कि ये गुस्ताखियाँ हैं नबी की। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह मैं डाल दूंगा, तो चला देना तो सही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बस अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है। हजरत कुछ दिनों पहले आपको ऑयल दिया हुआ था। हाँ जी। तो पहले से और अब से कुछ फायदा और अंतर दिखाई दे रहा है? जी जी, काफ़ी। पहले ये सारा जो एरिया था वो गंजा था जी, ये यहाँ, और मैंने पहले ही मंथ में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मेरे सारे बाल आ गए। और 2 मंथ हो गए मुझे लगाते हुए, 2 महीने हो चुके हैं, और माशाल्लाह काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बाल सारे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कंडीशन। जी जी जी, माशाल्लाह पूरा सर ही जो है हाँ बेहतरीन हो गया, और जो बहुत ज़्यादा छीदापन था अब नहीं है। जी जी जी, मैंने बहुत जगह ट्राई किया, बहुत सारे तेल यूज़ किए, लेकिन उनसे कोई शिफा फ़ायदा नहीं हुआ। जी, बाद में आपसे मुलाकात हुई और आपके तेल से अल्हम्दुलिल्लाह सारा मेरे बाल आ चुके हैं। माशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।